So as you can see on the screen, it's written the Sound of Music, this chapter, right? So Sound of Music chapter जो है, we had started already in our previous classes. जो हमारी 1 week पहले जो हमारी classes थी, class 9th की, उसमें हमने इस chapter को start किया था. And as you all know that it consists of 2 parts. That is, first is the Sound of Music का first part है. Evelyn Glenn listened to sounds without hearing it, right? And the second part is Ustad Bismillah Khan. As you all know that it is Sound of Music, so obvious सी बात है कि जो इसके दोनों पार्ट हैं, they will be related to what? They will be related to music, है ना? So Evelyn Glenn listens to sound without hearing it. Sound, जहाँ पे sound आ गया, there is music. So the first part is related to music. Second, Ustad Bismillah Khan. Ustad Bismillah Khan himself is the one who's related to the field of music, and we can say he is the great patron of music. Right? So second also हमारा किनके बारे में है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि किससे related है? Music से. So both these chapters, ये हमारे किस चीज से related है? Music. Okay, so first part we had already done, but I'll revise it with you because it's been I think more than 1 week कि हमने उसको part को, as we have completed the part, but still होता है ना जब हमने part complete करके छोड़ा and we are still waiting to complete the second part, तो थोड़ा सा first part में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ना रह जाए. So I'll quickly revise with you the part 1. Okay? एंड आफ्टर दैट हम सेकेंड पार्ट लेंगे. तो आपको एक रिविजन ले, बिकॉज मे भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स है जो उस दिन नहीं होंगे क्लास में, बट टुडे दे आर प्रेजेंट. सो जो भी सिचुएशन है, लेट अस रिवाइज द पार्ट 1. यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन. ये तो आपका पार्ट 1 का टेक्स्ट है, बट इट्स बेटर आप लोग क्या देखोगे, सुनो जो मैं आपको अभी चैप्टर के बारे में बता रही हूँ. ठीक है? सो ये जो चैप्टर है बेसिकली, जो एवेलिन ग्लेन लिसन्स टू द म्यूजिक विदाउट हियरिंग इट, ये किस चीज के बारे में? इट्स अबाउट अ गर्ल हुज नेम इज एवेलिन ग्लेन and she has a very big disability that she cannot hear. And Evelyn Glenn was a girl of about 8 years जब उनकी मदर ने डिस्कवर किया that there was something wrong with the girl. Now, for some time उन्होंने जैसे तैसे she managed to hide her deafness from friends and teachers. But then later what happened? But by the time she reached 11, it was discovered that she had hearing disability. But by the time जब वो 11 years old हुए ना, तो it was, ये सब पहचाना गया that she had a disability. And वो क्या disability थी कि वो सुन नहीं पा रही थी. She was profoundly deaf. वो क्या हो चुकी थी? Deaf हो चुकी थी. And could not hear at all. और वो बिल्कुल नहीं सुन पा रही थी. Okay. She did not give up and decided to show her interest in music. But she was a girl. उन्होंने give up नहीं किया. She did not give up and she decided to show her interest in music. और उन्होंने decide किया that it's but obvious that she is going to take her interest in music very clearly. Okay? One day she noticed a girl playing a xylophone. One day what happened? उन्होंने एक girl को देखा. What was she doing? She was playing a xylophone. वो क्या कर रही थी? Xylophone play कर रही थी. She wanted to play it too. वो भी उसे play करना चाहते थे. But her teachers discouraged her. But teachers ने बहुत discourage किया because looking at the disability, teacher said कि सुनता तो है नहीं, क्या खास music play करेगी ये. So उन्होंने उसको discourage किया. But कहते हैं ना, ray of hope can come from anywhere. So a Ron Forbes named person came and he helped him and encouraged her to explore her strength. Now वो आए, उन्होंने उनको उनकी strength को explore करने में उनको help किया. And he recognized her. उन्होंने उनको पहचाना, potential, उसके potential को पहचाना and supported her. उससे खूब support किया in achieving her goal. उनको उनका goal achieve करने में. He advised her not to listen through her ears, but try to sense it and feel it some other way. But उन्होंने उनको क्या कहा? उन्होंने उनको बोला कि I know that you have a great potential. तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा potential है. तुम म्यूजिक को समझ सकती हो, तुम म्यूजिक के अंदर बहुत कुछ अचीव कर सकती हो. सो आई हैव माई फुल सपोर्ट विद यू. तो उन्होंने उनको खूब सपोर्ट किया एंड उन्होंने उनको एडवाइस किया दैट इफ अगर तुम्हारे कान नहीं काम कर रहे हैं ना टू हियर द म्यूजिक, लीव इट.
Don't listen it through your ears, but sense it and feel it some other way. आप किसी और तरीके से उसको sense करो, feel करो. Soon she was very excited and she felt the vibrations. और वो बहुत excited हो गई इस चीज से and she started feeling the vibrations of music and she felt the vibrations. Now there are two kind of, we can say, beats. High pitch होता है और low pitch होता है, right? आप लोग म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स देखते हो तो वहां पे जो आफ्टर द सॉन्ग इज प्लेड, तो आपको वहां पे आपने कमेंट सुने होंगे, जो उनके मेंटर्स होते हैं वो उनको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हाई पिच आपका ऐसा जा रहा था, 2 नोट आपको नीचे गाना चाहिए था, थोड़ा सा स्केल अप था, थोड़ा सा स्केल डाउन था. सो व्हाट इज ऑल दीज आर दी बेसिकली वी कैन से द नोट्स. तो इसी तरह से यहाँ पे ड्रम्स की बीट सुनाई उसको. तो जो ड्रम था ना, हायर ड्रम, शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अबव पोर्शन. ओके, एंड शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन पोर्शन. Now later she realized that she could feel the vibrations in every part of her body. Later उन्होंने क्या realize किया, that she is able to feel the vibrations in every part of her body. वो अपनी पूरी body से vibrations को महसूस करना उसने शुरू कर दिया. She learned to open her mind and body to sounds and vibration. Now जैसे तैसे she learned, उन्होंने सीखा what, to open her mind and body to the sounds and vibration. एवलिन नेवर लुक्ड बैक. एवलिन ने कभी पीछे ना पलट के नहीं देखा एंड शी डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया दैट शी इज गोइंग टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. शी रीच्ड द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड फॉर दैट वो कहाँ पहुंची, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. एंड इट वाज अ चैलेंज फॉर अ डेफ गर्ल वहां पे एडमिशन लेना, बट शी ऑडिशनड फॉर द एकेडमी एंड शी स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स. एंड आफ्टर दैट, बिकॉज उनमें क्या था ना, एक दृढ़ निश्चय था. अब जहां पे आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय आ जाता है ना किसी चीज को करने का, nobody can make you stay back. आप हमेशा फिर आगे ही मूव करते हो, दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं रोक सकती. So same thing happened with her. She worked with strong determination and she moved from orchestral work to the solo performances. पहले उसने ऑर्केस्ट्रा के अंदर उसने इंस्ट्रूमेंट्स बजाए एंड फ्रॉम दैट वो इतनी डिटरमाइंड हो गई, इतनी परफेक्ट हो गई that she started working to solo performances. वो अकेली परफॉर्मेंस देने लगी. And once she started her solo performances, during her 3-year course, she won the most of the top awards. जितने top awards थे ना, सब जीते. And in 1991, उन्हें प्रेजेंट किया गया एक रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का एक प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड था. उससे उनको क्या किया गया, उससे उनको अवार्ड किया गया. एंड अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, वो फ्री कंसर्ट्स देने लगी हॉस्पिटल्स में, प्रिजन्स में. एंड शी गेव टॉप प्रायोरिटी टू टीच यंग म्यूजिशियन. तो जो यंग म्यूजिशियंस थे ना, उनको उन्होंने टॉप प्रायोरिटी पे उन्होंने उनको टीच करना शुरू किया. Ultimately, we can say that Evelyn was a shining inspiration to all the deaf children. उन्होंने ये अचीव किया है जो उनकी एज के पीपल सोच भी नहीं सकते. ठीक है. एंड शी हैज अर्न्ड अ नेम इन ऑर्केस्ट्रा एज वेल एज सोलो परफॉर्मेंसेस. उन्होंने बहुत से हैंडीकैप्ड को इंस्पायर्ड किया है, इतना इंस्पायर किया है कि वो पीपल ऐसा बिलीव करने लग गए दैट इफ शी कैन डू इट, व्हाई कांट वी डू इट. सो उस सबके अंदर ये एक डिटर्मिनेशन आई, ये एक जज्बा आया दैट एवरीबडी थॉट दैट does not matter, in spite of our disability, if she can achieve such a great place, then why can't we? So सबके अंदर कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन ने वर्क किया and it had effect on everyone. Okay, so this was the ultimate revision of which chapter, the part 1 of this same chapter, and I hope you all have understood it nicely. If yes, तो आप quickly एक बार hand raise करेंगे so that now we can move on to its second part. This was just a revision for your first part because क्या होता है ना, जब आप बहुत समय के लिए एक चीज छोड़ देते हो, इट वॉज ऑलमोस्ट आई थिंक 1 week to 10 days हो गए थे हमने इस चैप्टर को छोड़े हुए. सो जस्ट गुड टू हैव अ रिविजन ऑफ दिस. तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में म्यूजिक की तो एंट्री हो गई है ना. ओके गुड. चलो नाउ फाइनली हम लोग अपने सेकंड के ऊपर मूव करते हैं. ठीक है. चलो now let me scroll to the page where Bismillah Khan's chapter starts. Here comes the Shehnai of Bismillah Khan. Okay, I hope it's visible to you all. Chal.
Yes. If you all have the books, kindly open to the page of Shehnai of Bismillah Khan. आप खोल लो अपने pages उसके book के. Yes, anyone wants to open तो आप उसको open कर लीजिए. Now we are starting the second part, the Shehnai of Bismillah Khan. Now Bismillah Khan, you all know, Shehnai वादक, ठीक है, और इनको बहुत से award मिले, and even he is the one person who was awarded with the Bharat Ratna, which is the highest civilian award of India, and this was also been awarded to Bismillah Khan. तो ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो लाइफ ऑफ द ओरिजिन ऑफ चेन्नई कैसे स्टार्ट एंड द लाइफ ऑफ ऑल टाइम ग्रेट चेन्नई एसपीओ, इनको हम बोलते हैं बिस्मिल्लाह खान. भारत रत्न ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो इनको मिला जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल हिज डेडिकेशन टू म्यूजिक एंड फॉर हिज प्योर लव टू इंडिया. भारत रत्न, भारत मीन्स इंडिया, ये भारत रत्न उसको दिया जाता है विच वर्क लाइक्स अ रत्न. रत्न इज अ वेरी प्रेशियस स्टोन, जो अपने देश के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए वी कैन से अ वेरी प्रेशियस वर्क कर देता है ना, जो पर्सन विच शाइन्स लाइक अ जेम फॉर आवर नेशन, which shows his great love for India, for our nation and dedication towards any field. हर फील्ड में एक डेडिकेटेड सोल जो होता है पर्सन, उसको ये भारत रत्न से नवाजा जाता है. एंड व्हेन वी टॉक ऑफ म्यूजिक एंड व्हेन वी टॉक ऑफ शहनाई, इट्स द नो अदर देन बिस्मिल्लाह खान साहब. ओके, सो वी कैन से फर्स्टली सी, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें क्या होता है, हम कुछ भी पढ़ते हैं ना, वी हैव समवेयर, हमें कहीं ना कहीं एक थीम मिलती है इन चीजों से, है ना. थीम इन दी सेंस वी से, हमें कहीं ना कहीं एक जो हम बोलते हैं लेसन मिलता है हर चीज से, जो हर चीज हम सीखते हैं. जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, कौन सा था लास्ट चैप्टर, एवेलिन वाला, उससे आपको ऐसा लगा आपको कुछ एक कहीं ना कहीं पे एक लेसन मिला है जिंदगी के लिए, आपको एक मॉरल मिला, एक वैल्यू मिली है, एक शिक्षा मिली है. एनीबडी कैन टेल मी कि आपको अल्टीमेटली उस चैप्टर में से आपको क्या सीखने को मिला. यस, आई एम डूइंग वन थिंग अल्टीमेटली. मैं एक बार, आई डोंट नो वेदर यू आर रेजिंग योर हैंड्स फॉर डाउट और समथिंग, सो नाउ आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन. आप एक बार, ठीक है, तो कनिष्क जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ. गुड मॉर्निंग मैम. वेरी गुड मॉर्निंग कनिष्क. इज देयर एनी डाउट, या आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हैंड रेज किया है कनिष्क? मैम, टू आंसर योर क्वेश्चन. ओके, चलो, कम ऑन, आंसर इट. तो बताओ, लास्ट जो चैप्टर एवेलिन पढ़ा उससे आपको क्या शिक्षा मिल गई, बताओ मुझे. Ma'am, as she was deaf and we all know that she was deaf, so even she could learn the music and then she could play the instrument xylophone. So if she could do, so we could also do. And we are not disabled like her, and the God has taken that thing, so still she can do, so we can also do, ma'am. We can also do. Very good. Ekdam 100% correct and keep it up. Good. Anyone else? Okay, Lakshita. Yes, Lakshita, unmute yourself. Yes, good morning, ma'am. Yes, very good, Lakshita. Want to answer the question, Lakshita? Yes, ma'am. Yes, chalo, batao answer. What lesson do you get from the Evelyn's chapter? Yes. Yes. Despite of her disabilities, she was able to achieve her dream with strong determination and the strength she had. So we should also have this strong determination to achieve our dreams. Even if a person is disabled, he or she should not think him or her as disabled. No one is disabled in this world. Yes, very good. एकदम correct. Very good. Very nicely answered. So understood. देखो क्या हुआ, ये क्या है, लास्ट चैप्टर से हम कुछ भी पढ़ते हैं ना, इट्स नॉट ऑफ अ वेस्ट. हम अल्टीमेटली हम बात करते हैं, है ना, हम नॉर्मल टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उसमें भी आप देखते हो, आप दो फ्रेंड्स बात करते हो, दो नेबर्स बात करते हो, या आप अपनी मम्मी से बात करते हो, पापा से बात करते हो. अल्टीमेटली जब भी व्हेनेवर वी स्पीक ना, आवर स्पीक हैज समथिंग इन इट. बस उस समथिंग को ही निकालना एक क्रिएटिविटी होती है. तो हम कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, इट्स नेवर वेस्ट. सिर्फ रीडिंग पर्पज से आपको कुछ नहीं दिया जाता, आप पढ़ते हो उसमें से यू शुड एम्बाइब समथिंग. तो यहाँ पे क्या है, समटाइम क्या होता है, डिसेबल होना नहीं, हम मेंटली डिसेबल हो जाते हैं. मेंटली डिसेबल कहने का मतलब हम बोल देते हैं हमसे तो कुछ नहीं होगा यार, मैंने आज तक किया क्या है, एवरेज मेरे 40-50% मार्क्स आते हैं, ठीक है, चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे. आई एम नथिंग, नेवर अचीव्ड एनीथिंग वर्थ इन माय लाइफ.
So this is also a kind of disability. आप बिल्कुल say no, you are not at all insane. आप पागल नहीं हो, आप मूर्ख नहीं हो, आप मंद बुद्धि नहीं हो, आप कुछ नहीं, you are completely, we can say you have a very stable and very mature brain. But क्या है ना, हमें ऐसा लगता है we have achieved nothing. हम mentally क्या अपने आप को disable कर देते हैं. So आप यहाँ पे देखो, such a big physical disability could not stop that girl from being a sensation in this world, to create a sensation in this world. So why can't we? हमारे पास सब है, ठीक है, हम एबल्ड पर्सन है, हम नहीं कुछ अचीव करते. वाई? बिकॉज हमने अपनी मेंटल इंटेलेक्चुअल लेवल को डिसेबल करके नहीं रख दिया. सो द थिंग इज व्हाट वी अंडरस्टूड और व्हाट वी हैव टू एम्बाइब फ्रॉम दैट चैप्टर, कि आप कितने भी डिसेबल्ड हो, इफ यू हैव फर्म डिटर्मिनेशन, इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, देन अगर एक डिसेबल्ड पर्सन इतना कुछ कर सकता है, व्हाई कांट वी? Okay, so this is important, we learned from that. And now from बिस्मिल्लाह खान जी चैप्टर, इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें जो थॉट मिले ना, वो ये है, मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बताती हूँ, उस चीज को दिमाग में रख के पूरा चैप्टर आप समझना. थिंग इज, देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन टू हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. हार्डवर्क, कड़ी मेहनत एंड डेडिकेशन, जब आप पूरी तरह से क्या हो जाते हो, डेडिकेट हो जाते हो, अपने वर्क के प्रति समर्पित हो जाते हो, इन दो चीजों का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है. आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा. कोई और चीज क्या और कोई सब्स्टिट्यूशन वर्क कर सकता है? आपका एग्जाम आपको ही देना पड़ेगा, आपको ही पढ़ना पड़ेगा. डज नॉट मैटर आपकी मम्मी आपके लिए जान देने को तैयार है, बट क्या आपकी मम्मी आपकी जगह जाके पेपर दे सकती है? इज इट अलाउड? इज इट पॉसिबल? नो. आपके दोस्त कहते हैं यार तेरे लिए तो मैं जान भी दे दूं, बट कैन ही और शी गो एंड गिव एग्जाम इन प्लेस ऑफ यू? नो. Some things does not have substitution. So hard work and dedication का कोई substitution नहीं है. And you must have seen one who works very hard, one who is dedicated towards the work, उसमें हमेशा आपको बहुत अच्छे results achieve होते हैं. तो सिमिलरली ये जो शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान जी का हम चैप्टर पढ़ेंगे, फ्रॉम दैट अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू लर्न वन थिंग, अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन हैज नो सब्स्टिट्यूशंस. नाउ द पीपल जो जेनिथ पे पहुंचते हैं लाइफ के, जेनिथ मींस जो लाइफ के सक्सेस टॉप पे पहुंचते हैं ना, वो पीपल, दे वर एंडाउड विद सच क्वालिटीज. वो ऐसी ही क्वालिटीज से एंडाउड होते हैं. एंडाउड मींस उनके अंदर ऐसे ही गुण होते हैं, ठीक है, बहुत गुण होते हैं उनके अंदर. और वो कौन से गुण होते हैं? लाइक हार्ड वर्क एंड लाइक डेडिकेशन, एंड मेनी मोर कैन बी, बट दीज टू आर द मेन. एंड सच पर्सन नीड टू बी डाउन टू अर्थ. और आपको हमेशा क्या है ना, जब भी whenever you want to achieve all the success in life, आपको बहुत डाउन टू अर्थ होना पड़ता है. कहने का मतलब you should never be proud of anything. प्राउड ही नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए. You should always place your foot on the ground and work hard. बोलते हैं ना यार, जमीन पे रह के बात कर, ओवर कॉन्फिडेंस में जितना ऊपर उछलेगा उतना आराम से गिरेगा. Keep your feet fixed on the ground and work hard, and then you can see what great success you can achieve. So this theme, this story works on the Shehnai of Bismillah Khan. Now शहनाई क्या है बेसिकली? अब जब हम शहनाई पढ़ते हैं, शहनाई क्या है? शहनाई इज बेसिकली द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पुंगी. हमारे एक एम्परर थे औरंगजेब, उनके पैलेस के अंदर ना एक इंस्ट्रूमेंट बजता था जिसका नाम था पुंगी. ठीक है, आपने पुंगी सुना होगा. तो पुंगी बजती थी वहां पे, एंड पुंगी जो थी ना, इट गेव अ वेरी अनप्लेजेंट साउंड. उस्ताद जो हमारे जो औरंगजेब थे, उन्होंने क्या किया, हियरिंग दिस अनप्लेजेंट साउंड, उन्होंने पुंगी को बैन कर दिया. उन्होंने बोला अब ये पुंगी मेरे शाही महल के अंदर तो ये पुंगी नहीं बजेगी. उन्होंने इसको क्या किया, बंद कर दिया. नाउ जब ये बंद हुआ तो समवन समवेयर थॉट कि इसको बंद तो नहीं करने देंगे, वी आर गोइंग टू मेक सम इम्प्रूवमेंट्स इन इट. और ये सोचने वाले कौन थे? ये सोचने वाले एक बार्बर थे. बार्बर कौन होते हैं? जो बाल काटते हैं, दैट इज नोन एज नाई, जिनको हम बोलते हैं. ना आप शहनाई वर्ड के अंदर देखो, कहीं पे एक नाई वर्ड आ रहा है ना, नाई नाई, तो वो यहीं से रिलेटेड है. सो वंस अ बार्बर डिसाइडेड दैट ही इज गोइंग टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, और उन्होंने ऐसे ही किया. लेटर उन्होंने जैसे तैसे ही डिस्कवर्ड द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पुंगी. अब क्योंकि ये एक नाई ने फर्स्ट टाइम इसको प्ले किया, कहाँ पे? शाही पैलेस में. शाह पैलेस, राजा के महल में.
शाह पैलेस के अंदर नाई ने फर्स्ट टाइम पुंगी को प्लेस किया। तो आप दो वर्ड्स को कनेक्ट करो, शाह पैलेस का शाह और प्ले करने वाला कौन था, नाई। तो शाह प्लस नाई इज इक्वल्स टू व्हाट, शहनाई, एंड फ्रॉम देयर दिस वर्ड शहनाई केम। ओके, तो ये बेसिकली शहनाई का पूरा लॉजिक था। अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ शहनाई? इफ यस तो हैंड रेज करो। अल्टीमेटली टाइम टू टाइम आई शुड नो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है, हाउ डज द वर्ड शहनाई इमर्ज्ड, and yeah, what was the introduction of basically the shehnai in the Shah palace? So this is all you are going to write कि ये शहनाई basically कैसे आया। ठीक है, शहनाई अल्टीमेटली इस तरीके से आया। सो नाउ देयर आर द हियर कम्स द वी कैन से अल्टीमेटली आपको एक शॉर्ट उसका स्केच दे देती हूँ चैप्टर का, फिर हम उसके टेक्स्ट लेते हैं। ठीक है, नाउ सी, Emperor Aurangzeb has banned the playing of pungi, मैंने आपको बताया, in his Shah palace, in his royal residence. Then a barber decided, एक नाई ने डिसाइड किया that he is going to reform the tonal quality of pungi. उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है, बिकॉज ऑफ विच अनप्लेजेंट साउंड औरंगजेब ने इसको बैन कर दिया। ही सेज दैट ही इज गोइंग टू इम्प्रूव दिस टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, एंड यस he did it and he improved it. As this instrument was first played in Shahi chambers by a nai, so that is why it was named as Shehnai. Now, अब जो बिस्मिल्लाह थे, he learned Shehnai from his maternal uncle, and बिस्मिल्लाह he often, वो क्या करते थे, बिस्मिल्लाह एक भोजपुरी टेम्पल था। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान जी एक भोजपुरी टेम्पल था, वहां पे एक चैता करके एक गायन होता था। ठीक है, अ काइंड ऑफ अ गायन, जैसा भजन कीर्तन होता है उस टाइप का एक चैता होता था। वहां पे भोजपुरी में एक चैता होता था, वो वहां पे एक बिहारी जी टेम्पल था, वहां पे वो हमेशा उसको गाया करते थे। एंड आफ्टर सिंगिंग इट एज अ रिवॉर्ड, उन्हें वहां पे एक बहुत बड़ा लड्डू मिलता था, एंड दैट लड्डू वर्कड एज अ मोटिवेशन फॉर हिम, कि रोज वो वहां पे जाके उस चैता को गाते थे। Later, he went to his maternal uncle Ali Baks, जो बनारस में रहते थे, and he used to play शहनाई। बिस्मिल्लाह उनके साथ जाते, एंड बिस्मिल्लाह ने धीरे धीरे उनसे शहनाई सीखनी शुरू की। Now बिस्मिल्लाह practiced this instrument and he got its perfection। रोज बजाते और वो perfect हो गए। And once he got perfect and once he started to launch it as his career, उन्होंने इसको as his profession we can say, उनका जो इंटरेस्ट था उसको as his profession उन्होंने अचीव करने की शुरू की। Then the beginning time came, and सबसे पहले उन्होंने कहाँ से शुरू किया? At first वो सिलेक्ट हुए फॉर द ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ एंड शहनाई। यू नो, शहनाई एक बहुत ही, हम बोलते हैं ना, पायस सा इंस्ट्रूमेंट है। जब भी घर के अंदर कोई गुड वर्क होते हैं, कोई हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, तो वहां पे ये शहनाई को बेसिकली प्ले किया जाता है। आपने देखा होगा शादियों में क्या होता है, व्हेनेवर जहां पे भी मैरिज होती है वहां क्या बजती है, शहनाई, है ना। तो इसमें आपको कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मिलेंगे, लाइक एक मूवी आई थी शहनाई के नाम पे। सम वन डायरेक्टर प्रोड्यूसर वाज सो मच वी कैन से इम्प्रेस्ड विद दिस कि उन्होंने अपनी फर्स्ट मूवी का नाम रख दिया था गुंजूठी शहनाई। एंड इस तरह से ऐसे आपको बहुत से फैक्ट मिलेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू रीड दिस टेक्स्ट। इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये बहुत, इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ना, बहुत अमेजिंग चैप्टर है ये। ठीक है, मजे आएंगे इसको पढ़ने में। Now, so he was firstly selected for the All India Radio Lucknow as a Shehnai player. He performed in India and abroad. उन्होंने इंडिया में भी खूब परफॉर्मेंसेस दी, उन्होंने अब्रॉड में भी बहुत परफॉर्मेंसेस दी। एंड ही परफॉर्म्ड इन अमेरिका एंड अफगानिस्तान टू, और अमेरिका में, अफगानिस्तान में, हर जगह पे उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, एंड ही हैड इन्फ्लुएंस द फिल्म डायरेक्टर। ये देखो आया ना, आपको अब छोटा सा हिंट देती हूँ कि उन्होंने एक फिल्म डायरेक्टर को इतना इन्फ्लुएंस कर दिया, जिन फिल्म डायरेक्टर का नाम क्या था, विजय भट्ट। And he has named his film after this instrument, and the name of the film is Goonj Uthi Shehnai. Now we move on to the award section. बिस्मिल्लाह खान साहब के क्या achievements थे, उनको कितने awards मिले? There were so many national awards, several national awards he got, and हमारे national awards कौन से हमें पता है, Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan. He was awarded with all the three, and along with this he was awarded with the highest civilian award of India 2001, that is Bharat Ratna. He had great love for the country, we all know, and he always missed
Banaras and Dumrao, which lived in his heart whenever he is away from these places. जब भी वो इन दो जगहों से दूर होते थे ना, he always missed Banaras and he always missed the Dumrao. Dumrao is a place where he used to live. तो वो इन places को बहुत miss करते थे. And he says कि मुझे कहीं ना कहीं music के लिए motivation अपने इन दोनों जगह से ही मिलता है. And we can say बिस्मिल्लाह खान साहब का जो हम love देखते हैं ना उनकी country के लिए, तो वी कैन से कि वो सच में एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. वो एक बहुत ही वी कैन से हमारे देश की जो समृद्ध संस्कृति होती है, रिच हेरिटेज, उसका एक बहुत ही ग्रेट परफेक्ट एग्जाम्पल है. एंड उनके नाम से हिंदुस्तान को जाना जाता है, वी कैन से. तो जो भी ऐसे पर्सन होते हैं ना जो अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, अल्टीमेटली क्या होता है, आपके देश को उन्हीं के नाम से जाना जाने लगता है. योर कंट्री इज नोन. अब नाउ वी कैन से बहुत से ऐसे ग्रेट प्लेयर्स हैं या बहुत से ऐसे ग्रेट पीपल हैं, वो किसी भी सोसाइटी से, किसी भी कास्ट से, किसी भी कम्युनिटी से बिलीव कर, हम बोले कि बिलोंग करते हो, बट अल्टीमेटली अगर वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं एंड दे हैव टेकन इंडियाज नेम टू द जेनिथ, अगर वो इंडिया का नेम जेनिथ तक लेके गए हैं ना, देन वी कैन अल्टीमेटली से कि वो हमारे देश के लिए एक जेम की तरह काम करते हैं और उन्हीं से हमारे देश को जाना जाता है. नाउ थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं पे भी बिस्मिल्लाह खान साहब का नाम आता है ना, तो क्या लिखा आता होगा या बोला जाता होगा, द ग्रेट इंडियन म्यूजिशियन. So see, they have taken our name of India throughout the world, throughout the globe. So this way we can say ऐसे लोगों को ही भारत रत्न से अवार्ड किया जाता है because they are the rich, we can say, example of the rich cultural heritage of our nation, that is India. Yes. Now before starting the text, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है. यस, लेट मी आस्क यू, क्या प्रॉब्लम है? यस, बताओ, एक मिनट. यस दुष्यंत, वांट टू आस्क समथिंग? अनम्यूट करो. नो मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गलती से पहले से ही हो गया था. अच्छा, इट्स ओके, कोई बात नहीं. एंड चलो ठीक है, अभी अनम्यूट हो तो बताओ व्हाट एवर वी हैव स्टार्टेड, क्या क्लियर है सबको? Now ultimately you all understood the basic chapter sketch of this chapter, that is Ustad Bismillah Khan. I hope yes, है ना, ये अच्छे से समझ में आया. So once we are clear with the outline of the chapter, तो हम उसके टेक्स्ट को बहुत अच्छे से कर सकते हैं. ठीक है. So this was the basic outline of the chapter and I wish कि हम इसको अब कल ही स्टार्ट करेंगे because it's already 8:53. 1-2 minutes में your class will get over. तो हम ऐसे इसके कुछ और जनरल चीजों को हम डिस्क्राइब कर लेते हैं. ठीक है. एक बहुत अच्छी सी चीज है इनकी, ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, ये क्या थे, नेशन वाइड चार्ट बस्टर्स भी देते थे. कहने का मतलब इनको म्यूजिक में बहुत शौक था ना कहीं ये म्यूजिक की लाइन में कहीं और डील करते थे. यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अ सॉन्ग. मैं आपको एक सॉन्ग की लाइंस दे रही हूँ, आप उसको यूट्यूब पे जरूर सर्च करना. ये कॉम्पोजिशन किसकी थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कॉम्पोजिशन थी एंड इट्स एन अमेजिंग कॉम्पोजिशन. मैं आपको नाम बता रही हूँ, दिल का खिलौना हाय टूट गया. ठीक है. एंड दिस बिकेम द नेशन वाइड चार्ट बस्टर्स. ठीक है. दिल का खिलौना हाय टूट गया. आप इस सॉन्ग को, ये ओल्ड सॉन्ग है, मे भी जिसको रैप और पॉप पसंद है उनको हो सकता है ये चीजें ना पसंद आए, बट कहीं ना कहीं पे ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है, इसको आप सुनेंगे. एंड दिस वाज आल्सो अ कंपोजिशन बाय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. एंड दिस वे ये उनके सारे अचीवमेंट्स हैं. ठीक है. तो ये व्हेन ही वाज जस्ट 14 इयर्स ओल्ड, ये आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ मैं. व्हेन ही वाज जस्ट 14 इयर्स ओल्ड, वो अपने अंकल को अकॉम्पनी किया उन्होंने इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस के लिए. एंड इन 38 ही वाज सिलेक्टेड फॉर ऑल इंडिया रेडियो. एंड वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने 15 अगस्त 1947 पे जो था हमारा, उनको उन्होंने ग्रीट किया था द फ्रीडम विद शहनाई. एंड किंग जो थे अफगानिस्तान के, ही वाज वेरी मच फैसिनेटेड विद दिस म्यूजिक. एंड वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें इनवाइट किया गया था टू परफॉर्म इन द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही वाज द फर्स्ट इंडियन जिन्हें इनवाइट किया था दैट ही शुड कम एंड परफॉर्म एट दिस प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल. और ये लिंकन सेंटर हॉल कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ
अमेरिका। ओके, एंड वहां पे उन्होंने बहुत सारे ट्रेड फेयर्स थे, वहां भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एंड ऑन द ओकेजन जब उन्हें 2001 में उन्हें भारत रत्न दिया गया ना, तो उन्होंने इस ओकेजन पे उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने क्या बात कही पता है? टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन। अब अल्टीमेटली क्या होता था ना, हिंदुस्तान के अंदर जो एक ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी है ना, वो ये थी कि म्यूजिक जो होता था ना, उसको एक बहुत ही ल्यूड एसोसिएशन समझते थे। ल्यूड एसोसिएशन मतलब उसको बहुत छोटा, ऐसा कहा जाता था कि ये तो बेगर्स और हेरल्ड्स होते हैं ना। कहने का मतलब बेगर्स और जो गवैये होते हैं, जो गाने बजाने वाला काम करते हैं, म्यूजिक उन्हीं के साथ एसोसिएट करता है। म्यूजिक कभी भी सिविलाइज्ड पर्सन्स के साथ में सूट नहीं करता। म्यूजिक इज नॉट मेड फॉर जेंटल फोक्स, ये एक ऑर्थोडॉक्स सोच थी। सो उस वजह से बहुत सी ऐसी फैमिलीज थी जो अपने बच्चों को म्यूजिक की लाइन में आगे नहीं जाने देती थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था हम लोग अच्छे खानदानी लोग हैं, गाना बजाना हमारा काम थोड़ी है, ये तो भिखारियों का और गवैयों का काम है। तो ये क्या थी? ये एक ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी थी। नाउ यहाँ पे जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को जब भारत रत्न अवार्ड किया गया, एट दिस ओकेजन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने एक मैसेज दिया था, बिकॉज वेन एवर अ भारत रत्न इज प्रेजेंटेड टू अ पर्सन, उस वी कैन से उस सेरेमनी को, उस अवार्ड सेरेमनी को नंबर ऑफ 1000 lakhs ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको बैठ के देखते हैं। आई कैन से इन्यूमरेबल पीपल, लाख भी नहीं, इन्यूमरेबल पीपल सिट एंड ऑब्जर्व this